हाँ नहीं आया, 0.084 आ रहा है, करेक्ट 0.084 ना? हाँ 0.084 ही आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, उतना ठीक। फर्क 0.8 आ रहा था। कोई बात नहीं, 12755 पॉइंट ये चलता, 1 टर्न here and there doesn't make a difference at all. ठीक है सर, क्वेश्चन इजी है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। या चलो I'll just show you here, you can just compare कि आपने कैसे किया है। So थोड़े से इसमें steps थे कि yes, little bit it is tricky, so you have the question with you. This is a sketch. Now from the sketch you can make out what is given to me is OL. OL is given to me 15 centimeter. This is a sounding, basically has taken up with the sounding rod, so you get this 15 centimeter. And from the sketch you can make out that I want to calculate the, I have to first establish whether the wedge is existing or not. So उसके लिए हमें simple है that DH less than DC. Now to come to that stage, so first we take the bigger triangle ULP, and with this triangle ULP we find out the value of UL, because UP is the maximum depth of the tank that is known to us. तो यहाँ तो allege port is on the deck, so the maximum depth is the UP. तो इस ट्राइंगल से UP अपॉन UL cos थीटा, UL की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सो UL में से आपने 15 सेंटीमीटर माइनस करना है, which will give you the value of UO. And then we come to this small triangle UOT. UO is known, UT की वैल्यू निकाल लेंगे। UT की वैल्यू आ गई, टोटल UP is known, UP माइनस UT किया तो TP की वैल्यू आ गई। And similarly in this triangle we can find out PH, and PH plus DP, ये जो 3 मीटर है, this will give me the length of the wedge. So in this case probably the wedge is not forming. तो ये आपकी कैलकुलेशन होगी, first triangle, second triangle and third triangle, TPH, and finally you find the value of DH coming as 40.74, which is more than the, slightly more than the length of the tank. That means your oil surface is touching the forward bulkhead, so no wedge exists. तो अब इसका स्केच कैसा बनेगा? ये तो था कि हमने लिया assuming oil is here, now we found out no wedge is forming, so now you can see your sketch will be something like this. The oil surface is touching forward bulkhead, that means oil is like this. अब ये हमारा यूजुअल केस हो जाएगा जो हम पहले करते थे, that tape and trim correction. Now remember, in that wedge we have already found out the value of UT. UO से हमने UT की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली हुई है, ये सेम रहेगी। सो हमें ओनली PT की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। UT you have already calculated, so I calculate the value of PT from this small triangle PTE. So UT plus PT gives me the corrected LH, and then we can find out the, so since wedge is not forming, oil surface is touching the forward bulkhead, volume can be calculated by usual method, and triangle PTE we get the value of TP is equal to 0.066. UT की वैल्यू वही वाली 17.852 जो आपने पहले कैलकुलेट की थी, ये वैल्यू वही रहेगी, UT 17.852. नो नीड टू कैलकुलेट अगेन, अब यहीं से इसी वैल्यू को उठा सकते हो, UT is equal to 17.858. 17.858 प्लस द ट्रिम करेक्शन, आपके पास करेक्टेड LH आ गई 17.918. Height of oil and OBQ 72.16. Now on completion, of course no calculation, otherwise the question becomes very lengthy. Even keel 1.1 meter LH, मेरे पास टोटल GOV आ गया 14,000 minus OBQ, quantity loaded so many meter cube. For API 30.5, density at 15 degrees centigrade from table 3.8730, VCF, WCF, and this is your quantity of oil.
चलो आई सर होप इसमें एक वॉल्यूम ऑफ वेज दिखाना सर, बस वहीं पे 73 आया हुआ है अपना, वो देखना है एक बार से। ये देख 18 माइनस 17.918। ये 082। ठीक है सर, 17.917 लिया है, उसकी वजह से ही थोड़ा सा डिफरेंस है बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत है। मेरा भी 917 ही आया। ठीक है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा सी व्हेनेवर हु इज चेकिंग ही नोज कि आपका प्रिंसिपल एरर नहीं होनी चाहिए, आपने ठीक किया, ठीक है, वो डिजिट लास्ट डिजिट कई इसको बार। अगर नॉर्मल इसी में हाँ जी, साउंडिंग दी हुई है, सो या गो अहेड। ऐसे वाला फॉर्मेट इससे बच्चे आपकी आई नहीं, पूरी स्टेटमेंट आई नहीं, कैन यू रिपीट? MS, you are saying something? चलो ठीक है, हो गया सबका। एनी डाउट? सो प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना बिगनिंग में। समटाइम्स इट हैपन्स दैट डू नॉट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस यूपी की 15 सेंटीमीटर, आप टैंक की डेप्थ से माइनस करके एंड स्ट्रेट वे कैलकुलेट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट शी इज इन अ ट्रिम्ड कंडीशन। चाहे इसकी वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं है, यूएल जो आपका 18.002 है, सो 18 और 18.002 वेरी स्लाइट डिफरेंस। सो ये थोड़ा सा नहीं भूलना। समटाइम आई हैव सीन इन द पास्ट that the candidates try to subtract from this only, ये नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है, चलो चलें आगे। एनी डाउट्स विद एनीबडी? सर ये ऑब्जर्व जो एज रहेगा इस कंडीशन में, वो क्या रहेगा सर? ऑब्जर्व जो एज अगर निकालते हैं साउंडिंग से तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्व नहीं, ही हैज गिवन मी द साउंडिंग ऑफ द व्हाट वी कॉल द ऑयल। दैट मीन साउंडिंग रॉड से यहाँ से लेके ये उसने मेरे को साउंडिंग दे दी, उसने एलेज नहीं दी। दिस इज ऑब्जर्व साउंडिंग। साउंडिंग रॉड से उसने साउंडिंग रॉड लोअर की एंड इट इज टचिंग द टैंक बॉटम। अब टैंक बॉटम को जब आपकी साउंडिंग रॉड टच करेगी तो ये साउंडिंग मिलेगी जहां तक ऑयल आपकी साउंडिंग रॉड को टच करेगा। तो ये उसने 15 सेंटीमीटर साउंडिंग दी है। बट आई टोल्ड यू इट यूज्ड टू वो बी, कैन नॉट बी सर ऑब्जर्व एज ना सर? या नो नो, दिस विल नॉट बी द ऑब्जर्व्ड एज। दिस इज द साउंडिंग ऑफ द whatever OBQ you have, whatever oily mixture you have. ओके सर। हाँ, अगर हम साउंडिंग से रडार बीम से अगर हम साउंडिंग देता देन वी कैन टेक डायरेक्टली द एज। Yeah, sound radar beam cannot give you, radar beam will give you the ullage. radar beam जो है उस ऑयल सरफेस को ही टच करेगा। ओके ये आपने जस्ट इमेजिन जैसे आप अपने बैलास्ट टैंक की साउंडिंग लेते हो, आप साउंडिंग रॉड को पूरा साउंड करते हो, इजंट इट? आई डोंट वांट टू गो हिस्ट्री में कि इसे साउंड क्या कहते हैं, टू साउंड द टैंक साउंडिंग है ना, हम बॉटम को टच करते हैं। तो ये यस या प्रीवियसली ऐसा ही होता था जब से ये क्लोज्ड अलेजिंग सिस्टम नहीं था। ओल्डन टाइम देयर वाज नो क्लोज्ड अलेजिंग सिस्टम। सो वाटर टिप लेनी है तो ये सारी की सारी आपकी साउंडिंग रॉड से ही वाटर फाइंडिंग पेस्ट लगा के होता था। तो आपने इमेजिन कीजिए जैसे आप बैलास्ट टैंक हैंडल करते हो, दैट यू लोड द साउंडिंग रॉड एंड इट इज टचिंग द टैंक बॉटम। सो ये आपको दिया हुआ है, इट्स नॉट द अलेज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज द टैंक। Now here he has given you 83 meter cube of OPQ or ballast is already there in the tank, and you load two parcels 5000 meter cube 5000 metric ton, दोनों की डेंसिटी दी है आपको, and you have to calculate the final ullage by UTI gauge. After loading final temperature is 12 degrees. क्वेश्चन को लिख लीजिए, and it is assumed there is no commingling, there is no mixing up of the oil.
सर ये बेलास्ट के ऊपर कर रहा है सर लोड के? Yeah. Ballast means it is like water. अभी मैंने टैंक को वॉश किया है फॉर एनी पर्पस, इंस्पेक्शन, रिपेयर, एनी, उसके बाद ठीक है हमारे से, दिस इज लाइक द अनपम्पेबल। तो बैलास्ट इसको ये ना समझिए, इट इज बैलास्ट बट इट इज जस्ट लाइक ऑयली मिक्सचर, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। अदरवाइज पहले ये होता था, वी यूज्ड टू कैरी सीवीटी टैंकर जो होते थे कन्वर्टिबल, तो उन्हीं को वॉश किया जाता था, बैलास्ट लिया जाता था, फिर वो बैलास्ट को पंप आउट करके उसी के ऊपर ऑयल लोड किया जाता। हेलो, तो मतलब ये अपना ये 83 मीटर क्यूब है, इसको पहले निकाल देंगे, उसके बाद करेंगे लोड? नो 83 मीटर क्यूब आपके टैंक में ऑलरेडी है, उसके ऊपर आपने ये ऑयल लोड किया है। तो तो पानी फाइनल उससे तेल बन जाएगा। अब देखिए, जैसे हम पहले निकाल रहे थे, यहाँ पे उसने आपको ऑलरेडी दे दिया, सो नो नीड टू कैलकुलेट लाइक कि 10 सेंटीमीटर साउंडिंग या 15 सेंटीमीटर साउंडिंग, जैसे हम वेज से कैलकुलेट करते थे कि मेरे टैंक में ऑलरेडी कितना क्वांटिटी है। सो नाउ ही हैज ऑलरेडी गिवन यू द क्वांटिटी इज 83 मीटर क्यूब। सो वो फाइनल में एड अप हो जाएगी। आप एक तेल लोड कीजिए, दूसरा लोड कीजिए, एंड फाइनल आपके पास जो भी क्वांटिटी आएगी उसमें 83 एड अप होके आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। फिर आपने उसकी एवरेज निकालनी। ओके। ठीक है, पार्सल 1 इज देयर, पार्सल 2 इज देयर, एंड फाइनल टेम्परेचर आपका 12 डिग्री है। सो 12 डिग्री पे इनका दोनों पार्सल का वॉल्यूम निकालिए, प्लस 83 ऐड कर दीजिए, दैट इज द टोटल वॉल्यूम इन द टैंक, दैट्स ऑल।
तो पहला 9.7289 आया। पहले का हाउ मच वॉल्यूम? तो नहीं सर, ये अलेज सर 9.7289 आया था। एलेज 9 पॉइंट तो नहीं होगा बच्चे, कम ही होगी एलेज तो। 3.355 नो, इट इज करेक्टेड एलेज करेक्टली 3.356 है। 3.177। नहीं सर, करेक्टेड एलेज कितनी आई? 3.356। ओके या ठीक है, 3.355 या 3.356 ओके। मतलब ये दोनों एक साथ कर दिए लोड, मतलब 5000 मीटर क्यूब भी और 5000 मेट्रिक टन भी। हाँ देखो दोनों में फर्क है, वन इज मीटर क्यूब, वन इज मेट्रिक टन, तो उनको कन्वर्शन 12 डिग्री पे लेके आना है आपको। उसको लगा था कि मतलब पहले मतलब इसको करना है, पहले 5000 मीटर क्यूब करना है एक एक, बाद में करना है बी वाला के ना, वो अलग है मतलब। करेक्ट करेक्ट। बेसिकली आपको दोनों का जो है 12 डिग्री पे वॉल्यूम निकालना है।
So 3.178. Correct, correct. So 3.185 आ रहा है. 3.177 आना चाहिए या 178. करेक्टेड नॉलेज कितनी आई आपकी? So 3.36. हाँ, यहीं पे कुछ गड़बड़ है. 3.356 होनी चाहिए थी या 3.355. कोई बात, थोड़ा करने दीजिए. अदर पीपल मे बी डूइंग इट, सो फिर देखते हैं. चलो, दिस इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. फर्स्ट का पार्सल ए, we have 5000 meter cube to load at 27 degree centigrade, isn't it? Temperature is given, density is given, so we calculate VCF and we found out the GSV 5000 into VCF. हमें क्या करना है? बेसिकली इसका वॉल्यूम 12 डिग्री पे, बिकॉज दैट इज द फाइनल टेम्परेचर. 12 डिग्री पे इसका वॉल्यूम कितना होगा? GSV डिवाइड बाय VCF एट 12. पार्सल ए का वॉल्यूम at 12 degree will be 4935.7. ठीक है, ये सबका आई थिंक करेक्ट होगा.
Yes, sir. चलो अब आ गया पार्सल ए, तो सिंपल था, यहाँ पे आपको मीटर क्यूब दिए थे, वॉल्यूम VCF एंड GSV डिवाइड बाय VCF, आपके पास ये आ जाते हैं। नाउ कम्स पार्सल बी, जिसमें आपको मेट्रिक टन दिए हैं। सो अगेन दिस इज वेट टू वॉल्यूम, so weight or mass divided by WCF will straightway give me GSV. तो यहाँ पे 5000 ton divide by the WCF, I get GSV 5645.9. तो ये भी हमने देखा है कि yes, to calculate the GSV simple method. तो मेरे पास GSV आ गया। once I know the GSV, पिछले केस में हमने GSV निकाला था GOV into VCF, यहाँ पे mass divided by WCF GSV, and A GSV divided by VCF at 12 will give me the GOV at 12 degree, which is 5633.5. So पहले केस में था 4935.7, अब ये दूसरा लोड किया तो 56। अब हम इसको टोटल अप कर देते हैं। टोटल ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम ऑफ ऑयल एंड वाटर, पार्सल ए पार्सल बी प्लस 83 मीटर क्यूब। Now in this type of question it is assumed जो भी आपका water is there is no change in the volume of the water, so हम उसको 83 रखेंगे। तो आपके पास टोटल आ गया 10,652.2 मीटर क्यूब of this oil and water. अब डेप्थ ऑफ ऑयल, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया, हाइट ऑफ ऑयल और डेप्थ ऑफ ऑयल, दिस मिक्सचर जो भी है। करेक्टेड अलेज एट 12 डिग्री 15 प्लस 88 सेंटीमीटर आपका अलेज पोर्ट डेक से ऊपर है, माइनस द हाइट ऑफ ऑयल। तो ये आपकी करेक्टेड अलेज है। इफ द शिप वाज ऑन इवन कील, तब हमें ये वाली अलेज मिलनी थी 3.55. This should be the allege. If there is no list, since vessel is listed 2.5 degree to port, so we have to calculate the observed allege. So again, as usual, UO is the observed allege to be calculated and UP is the allege with tip correction, and UT हमें यहाँ पे दिया हुआ है. So we have got, what we got is 3.355 is the UT. जो आपका स्केच आपने बनाया होगा उसमें UT is 3.355. अब in this case there is a list of 2.5 degree to port. So ये स्केच हम बना लेते हैं. She is listed to port and very simple, मेरे को UT दिया है. UT I know, UT से मैं UP and then U. I think clear. सर एंगल ऑफ ट्रिम तो 0 है ना, तो ये फिगर कैसे बनेगी? अच्छा, ये आपकी देखो पोर्ट एंड स्टारबोर्ड मैंने लिखा है. अब आपने ये दिस यू आर शोइंग द शिप इज लिस्टेड टू पोर्ट एंड स्टारबोर्ड. ये सेंटर लाइन है, ये आपका पोर्ट या स्टारबोर्ड, फॉरवर्ड एंड आफ्ट नहीं है. अब आप शिप को फॉरवर्ड से या आफ्ट से देख रहे हो. इफ यू वॉच योर टैंक फ्रॉम द स्टर्न, तो आपको कैसा दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा शिप लिस्टेड टू पोर्ट, इजंट इट? और जो दूसरा स्केच बनाते हैं दैट इज वी आर लुकिंग से फ्रॉम द साइड. आप जेटी पे खड़े हो, इफ यू आर लुक टुवर्ड्स द शिप, मतलब शिप साइड, तब आपको यही टैंक जो है ये आफ्ट पोर्शन आ जाएगा, ये फॉरवर्ड आ जाएगा. आई होप क्लियर. क्या कहते हैं, क्लियर और नॉट क्लियर? बच्चे सर लास्ट पार्ट दिखाना एक बार. ये यूटी वाला बता दो, यूटी कैसे? ये बच्चे देखो, आपने क्या किया, टोटल किया सब कुछ. हमारे पास दोनों आगे, फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम एट 12 डिग्री एंड वट एवर इज देयर इन माई टैंक 83 मीटर क्यूब. इसका मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ गया आपके टैंक में. दिस इज द टोटल क्वांटिटी, पार्सल ए पार्सल बी प्लस वट एवर आई ऑलरेडी हैड इन द टैंक. उसको मैं एरिया से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास हाइट ऑफ ऑयल आ गई. एंड टोटल हाइट में से मैं अगर हाइट ऑफ ऑयल माइनस करता हूं तो अलेज आ गई, इजंट इट?
नो Yes, sir. एनीबडी प्लीज, यहाँ पे अगर आपको डाउट है, आई स्टॉप हियर। तो ये बेसिक चीज एक बार जरूर आपके मन में बैठ जानी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आपने कर ली, दोनों को एडअप किया, तीनों को, एंड अब मेरे पास ये वॉल्यूम आ गया, इसकी मैंने हाइट निकाली। और यू वांट मी टू शो यू ऑन द बोर्ड, इज इट ओके? और Okay, sir. चलो ठीक है, ये आपने अलेज निकाल ली। अब ये अलेज थी कि इफ देयर वाज नो लिस्ट नो ट्रिम, तब तो मेरे पास दिस वाज द करेक्टेड अलेज 3.355। अब वो कहता है सिंस देयर इज अ 2.5 डिग्री लिस्ट, तब मैं ये स्केच बनाता हूँ दैट दिस इज पोर्ट साइड एंड दिस इज स्टारबोर्ड साइड। टैंक मेरा शिप इज लिस्टेड, तो मेरा ऑयल जो है पोर्ट टू स्टारबोर्ड इट विल कम टू द पोर्ट साइड में आ जाएगा। अब मेरे पास करेक्टेड अलेज थी यूटी। अगर इसी शिप को मैं अपराइट कर देता हूँ तो आपके पास जो अलेज आई 3.355 वो यूटी आ रही थी। नाउ शी इज इन दिस लिस्टेड कंडीशन, तो मेरे को यूटी से मैं ये करेक्शन निकालता हूँ, सेम पीटी अपॉन टी, बी टेन थीटा वाली 4 इंटू टेन ऑफ लिस्ट, ये लैंड ऑफ लिस्ट है। पीटी आ गया, उसको यूपी में ऐड किया तो मेरे पास, और यूटी में से माइनस किया तो मेरे पास यूपी आ गया। एंड यूपी अगेन आई टेक दिस ट्रायंगल UOP, UP is known, list angle is known, I can calculate U. Triangle PT upon T is tan theta, where theta is angle of list 2.5. So PT is equal to 4 into tan of 2.5, 0.175, ये करेक्शन आ गई। इसके लिए यूपी बिना डायग्राम के भी डायरेक्ट आ जाएगा ना, लिस्ट करेक्शन तो B10 लगानी है बस। करेक्ट करेक्ट। लिस्ट के टाइम पे सर आपने बोला था ये UO is equal to UP होता है। UO is equal to सर UO is equal to UP, तो वो लगाने की जरूरत नहीं है करेक्शन। नो बच्चे लगेगी सही। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जो हम लगा रहे थे, आई शो यू अनदर क्वेश्चन, हम लगा रहे थे बट उसकी वैल्यू सेम आ रही थी। हम उसको डबल इसलिए नहीं कर रहे थे कि सेम आ रही थी। अब आपने क्या किया, आपने यूटी निकाल लिया, यहाँ पे सिर्फ लिस्ट है, इसीलिए मैंने आपको इस स्केच पे थोड़ा स्ट्रेस किया है कि नाउ यू इमेजिन, जस्ट विजुअली इमेजिन इन योर माइंड कि शिप, अगर ये टैंक सीधा होता, आई जस्ट टेक यू ऑन द बोर्ड पे, देन ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा क्लियर होगी। Now, अगर मेरा ship was upright, what do I get? This is already you had OBQ 83 मीटर क्यूब। पार्सल A आपने लोड किया, पार्सल B आपने लोड किया। We are assuming they are not mixing up, there is no co-mingling, which is nowadays not allowed. So it is just a question कि ये दोनों ऑयल्स सेपरेट हैं। मेरे पास ये टोटल ऑयल का वॉल्यूम आ गया, उससे मैंने ये हाइट निकाल ली, एंड फाइनली ये मेरे पास अलेज आ गई। इफ द शिप वुड हैव बीन अपराइट 3.355 मीटर, ये मेरी अलेज थी, रादर से फ्रॉम द अलेज पोर्ट। 3.355 meter is the allege after loading this. Now imagine the ship is basically, now she is listed. Listed means यही टैंक जो है, आप राइट फ्रॉम एस्टर्न से अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो यही टैंक इट बिकम्स लाइक दिस, इन दिस कंडीशन में आ जाता है। अब ये थी यही वाली आपकी अलेज, but what has happened now, the oil level has become like this, and ये आपका सेंटर लाइन
She is listed to port. अब मेरे पास ये वाली अलेज है जिसे मैं यूटी कहता हूँ, विच इज 3.355 एंड मेरे को निकालना क्या है कि इन दिस लिस्टेड कंडीशन मेरे को ये निकालनी है यूओ। दैट्स ऑल। तो मैं ये पहले छोटी ट्रायंगल ले लेता हूँ PTE, इसमें से PT की वैल्यू निकालता हूँ। सो इफ आई नो PT सिंपल इज इक्वल टू TE इंटू tan ऑफ लिस्ट, tan ऑफ 2.5। TE मेरे को पता है दिस इज 4 मीटर ऑफ सेंटर, तो ये 4 इंटू tan ऑफ 2.5, आई थिंक इसकी वैल्यू 0.175। अब ये जो वैल्यू है ये आपकी 0.175। टोटल मेरे को पता था 3.35, तो यहाँ से मैं यूपी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 3.35 माइनस 0.175, ये मेरे पास 318, इसकी वैल्यू आ गई 318 यूपी की। यूपी इज इक्वल टू 318। फिर मेरा वही to come to UO, UO is equal to UP cos theta, UO is equal to UP into cos of list 2.5, 3.177. I hope clear now. सर पार्सल ए वाला कैलकुलेशन दिखा दो प्लीज। क्या पार्सल ए में क्या था? 5000 मीटर क्यूब। We calculate the VCF because it is volume given to me और उसका टेम्परेचर भी दिया। What is the temperature given? पार्सल ए का था I think 27 degree. Now you know the temperature of this oil is 27 and density at 15 degree is 0.8198, 0.8193. I enter table 54. VCF आ गया आपके पास 0.9897, करेक्ट? Yes or no बच्चे? Correct VCF? मेरे पास Yes, GSV, yeah, I got GSV 5000 into 0.9897. ये GSV आपका आ गया 4948.5. यस सर। अब आपके माइंड में ये बैठ जाना चाहिए कि मेरे पास अगर GSV है और मेरे को चाहिए GOV बिकॉज फाइनल टेम्परेचर इज 12 डिग्री। यार इस ऑयल का 5000 मीटर क्यूब जो 27 डिग्री पे है, इसका वॉल्यूम 12 डिग्री पे कितना होगा? दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। तो GOV एट 12 डिग्री विल बी इक्वल टू GSV डिवाइड बाय VCF एट 12 डिग्री। डेंसिटी वही रहेगी, टेम्परेचर चेंज हो गया। So what do we get? 4948.5 divided by VCF at 12 degree, which is 1.0026. वैल्यू आ गई 4935.7। 27 डिग्री पे इसका वॉल्यूम था 5000 मीटर क्यूब एंड जैसे ही टेम्परेचर नीचे आया 12 डिग्री, वॉल्यूम रह गया 4935.7। आई होप क्लियर। यस सर, गॉट इट। दूसरे केस में था मेरे पास उसने मेट्रिक टन दिए हुए। तो मेट्रिक टन का हमें पता है, जो हमने पढ़ा था वेट टू वॉल्यूम टू एलएच। उसमें हम क्या करते थे, वेट
डिवाइड बाय वेट और मास डिवाइड बाय WCF। अब आपको इसको याद नहीं रखना, आई थिंक डू नॉट गेट कंफ्यूज यार, इसको मैं याद करूं, इसको मैं याद करूं। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, ओनली वन इक्वेशन, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम GOV इंटू VCF इंटू WCF, दैट्स ऑल। बाकी सारी चीजें इसी से ही इधर से उधर लेफ्ट टू राइट करने वाला है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वेट टू वॉल्यूम और वॉल्यूम टू वेट, इसी को मैंने चेंज किया है। मास के नीचे में WCF यहाँ से उठाया, इफ आई डिवाइड दिस बाय WCF व्हाट डू आई गेट, इसको निकाल दो। GOV into VCF is what? GSV, isn't it? वही हम कर रहे हैं, वेट अपॉन WCF is equal to GSV. What is GSV? Volume at 15 degree centigrade. And इसी इक्वेशन को GOV, अब इसको छोड़ दीजिए, GOV into VCF is equal to GSV. मेरे को चाहिए GOV at 12 डिग्री, VCF भी 12 डिग्री पे होना चाहिए। Now please do not say कि सर GSV भी 12 पे हो। GSV means it is a volume at 15 डिग्री सेंटीग्रेड। GSV मेरे पास है। अब मैं ये जो VCF है इसको यहाँ पे ले आता हूँ, VCF at 12 डिग्री, जब ये यहां से निकला तो क्या आ गया, GOV। एक ही इक्वेशन है, याद करनी, दैट्स ऑल। STM का सबसे बेस्ट तरीका, कुछ भी आप किसी भी चीज से आप निकाल सकते हो। हम वहां पे शो करते हैं स्टेप वाइज, इट इज जस्ट कि आपने निकाला, मेरे पास उसने वॉल्यूम दे दिया या आपके पास करेक्टेड अलेज आ गई, व्हाट डू वी डू, ये करेक्टेड अलेज को हम GOV ले लेते हैं। यार इतना मेरे पास ये वॉल्यूम है, सो मच इज द वॉल्यूम इन द टैंक। अब इसका मास निकालना है, स्ट्रेट वे इंटू VCF इंटू WCF, एक ही लाइन में सो मेनी मेट्रिक टन। अब एग्जाम में हम शो करने के लिए, या मैं अपने आप को भूल ना जाऊं, सो उसी चीज को मैं थोड़ा सा करता हूं कि ओके, अलेज, करेक्टेड अलेज, सो एंड सो, GOV इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ऑफ वाइड, आपके पास वॉल्यूम आ गया। जब आपके पास GOV आ गया, VCF आपने टेबल से निकाला सो दैट आई डोंट फॉरगेट, एंड WCF डेंसिटी एट 15 डिग्री माइनस 0.00, स्ट्रेट वे मास इज इक्वल टू GOV इंटू VCF इंटू WCF, so many metric ton, खत्म। उससे आपका टाइम भी बचेगा एंड बेसिकली द सेम। सो एक ही इक्वेशन है आपकी, GOV इंटू VCF इंटू WCF, वही सारी रोटेट हो रही। तो आई होप क्लियर टू एवरीवन। क्या कहते हैं, एनी डाउट? आई थिंक दिस इज द वेरी बेसिक। अब तक कि आप चाहे टैंकर किया नहीं किया, कि सर ये तो इजी कैलकुलेशन है। एक और करें कि चाय पीनी है? सर कर लेते हैं सर, फिर चलेंगे सर। चलो ठीक, ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स वाला देता हूं। अब तक तो हम कर रहे थे, कॉलेजेस को करेक्ट कर रहे थे, सेम जैसा आपने किया है, ये उसी सिमिलर टाइप का है। टैंक डायमेंशंस आर गिवन, loading temperature 24, density is given, 2% of the volume of the tank is to be left for expansion. Very practical question. आप लोडिकेटर पे बैठे हो,
आपके पास डेटा है, 24 टेम्परेचर है, कार्गो का डेंसिटी है, एंड आपने 98% टैंक को लोड करना है। इधर वही करते हैं हम, आपने उसका वॉल्यूम लोडिकेटर में डाल दिया एंड स्ट्रेट वे यू गेट द अलेजिस कि भाई इतनी इतनी अलेजिस आपने इन टैंक्स पे रखनी है। अब जब आप सीसीआर में आते हो, चलो आजकल तो आई गॉट कंफ्यूज कि लोडिकेटर भी सीसीआर में ही है, पहले तो अलग होता था, सीसीआर अलग, लोडिकेटर कहीं चीफ ऑफिसर के ऑफिस में होगा। अब आप जब CCR में हो and when you are going to top of the tank, ship has got a trim, all the time she will not be on even keel, वो तो लास्ट में जाके आएगा, लास्ट में बेबी 1 और 2 टैंक्स जब आप टॉप अप कर रहे हो तब आप उसको इवन कील पे लेके आते हो। सो नाउ यू हैव टू टॉप अप द टैंक। आपके पास अलेज थी जो लोडिकेटर ने दी 2 मीटर या 1 मीटर या 1.5, दैट वाज इवन कील अलेज। अब 2 मीटर ट्रिम है, 1 मीटर, अब आप कितनी अलेज रखोगे ताकि इवन कील पे जो आपने कैलकुलेट की है अलेज, अगर अलेज ज़्यादा होगी तो शॉर्ट लोडिंग और अलेज कम हो गई तो आपका 98% से ज़्यादा वॉल्यूम लोड हो गया। तो ये चीज़ों सर की आर्ट होती है दैट ही हैज़ टू मेक श्योर दैट इवन 1 मीटर 2 मीटर ट्रिम पे ही स्टॉक्स द ऑयल इन सच अ वे दैट इवन कील पे उसने जो कैलकुलेट की है अलेज उतनी ही आए। ये वही क्वेश्चन है। सर इसमें क्वांटिटी तो पूछा ही नहीं है, तो टेम्परेचर और डेंसिटी 15 डिग्री सेल्सियस का तो कहीं पे यूज ही नहीं हो रहा है। बच्चे आपको निकालनी है ना, आपको या आई थिंक क्वांटिटी फाइंड द फाइनल ऑब्जर्व्ड अलेज बाय मेजरिंग टेप, खाली अलेज ही निकालनी है। यस
So 1.196. Yeah, okay, good. Sir, one Picha, your voice is broken. Say again, please. sir 1.196. Yeah, 1.196. चलो चाय पी ले दिस, साथ साथ चाय भी पी लो. 10:15 पे मिलते हैं. Then we will see how you have done. Okay. Okay, sir. Yeah.